بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس ایپیسوڈ نمبر 16۔ نوبہ کی شاندار فتح کے بعد سلطان رکن الدین نے منگولوں کی طرف توجہ دی۔ عام حالت میں شاید وہ ان کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اس قدر جلدی اور سرعت سے کام نہ لیتا، لیکن پچھلے کچھ ماہ سے منگولوں نے ایسا رویہ اختیار کر رکھا تھا کہ منگولوں کے مقابلے میں سلطان کے قاہرہ میں خاموش بیٹھے رہنا مشکل اور ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ ہلاکو کی موت کے بعد منگولوں کی قیادت اس کے بیٹے ابقا خان نے سنبھال لی تھی اور ان کا مرکز مراغہ شہر تھا۔ ابقا خان اپنے باپ ہلاکو خان سے بھی زیادہ عیسائیت نواز اور اسلامی دشمن تھا، اور آرمینیا اور فلسطین اور شام کے صلیبیوں سے اس کے گہرے اور دوستانہ تعلقات تھے، لیکن یہ سارے حلیف بھی اسے سلطان رکن الدین کے ہولناک یلغار اور بے روک ترکتاز سے نہ بچا سکے۔ سلطان رکن الدین پر حملہ ور ہونے کے لیے ابقا خان نے بے پناہ جنگی تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ اسے اس بات کا سخت صدمہ تھا کہ بحر روم کے کنارے نصرانی قلعوں اور شہروں پر حملہ ور ہوتے ہی یقین بعد دیگر سلطان رکن الدین نے ان سب پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسے انطاکیہ شہر کی فتح ہونے کا بھی غم تھا، اس لیے کہ انطاکیہ شہر ایشیا میں عیسائیت کا مرکز اور بڑا مستحکم قلعہ خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد سلطان رکن الدین نے یقین بعد دیگر جب افریقہ میں فرانس کے بادشاہ لوی نہون کو بدترین شکست دی اور وہ جنگ میں مارا گیا، اور اس کے بعد افریقہ میں سوڈان کے ریگزار اور دہشت میں وہاں کے بادشاہ ٹیوٹ کو بھی سلطان نے بدترین شکست دے کر ایک قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے پیش ہونے پر مجبور کیا، تو منگولوں کے عیسائی حکمران ابقا خان کا غصہ سلطان رکن الدین کے خلاف اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا، لہٰذا وہ سلطان پر حملہ ور ہونے کے لیے پر تلنے لگا تھا۔ ابقا خان کو یہ فہم ہو گیا تھا کہ اس کی ٹڈی دل لشکر کے مقابلے میں چونکہ سلطان رکن الدین کے لشکر کی تعداد کم ہے، لہٰذا وہ سلطان رکن الدین کو شکست دے کر نہ صرف کہ سلطان کی قوت اور طاقت کا خاک کر دے گا، بلکہ ماضی میں سلطان رکن الدین نے جو اس کے باپ ہلاکو خان کو بدترین شکست دی تھی اس کا بھی انتقام لے لے گا۔ سلطان رکن الدین سے ٹکرانے اور حملہ ور ہونے سے پہلے ابقا خان نے یورپ کے عیسائی حکمرانوں سے برابر نامہ و پیام جاری رکھا اور انہیں سلطان رکن الدین کے خلاف لشکر کشی پر آمدہ کرنے کا حتم المقدار کوشش کی۔ اس کے ایک ایسے ہی خط کے جواب میں انگلستان کے بادشاہ ایڈوت نے 25 جنوری 1275 کو جو خط لکھا وہ منگولوں اور یورپ کی عیسائی حکمرانوں کے باہمی تعلقات پر بڑی گہری اور بخوبی روشنی ڈالتا ہے۔ یہ خط اب تک محفوظ ہے اور اس کا مضمون کچھ یوں ہے: پادری ٹوٹ ہمارے درمیان میں پہنچا اور اس نے ہمیں وہ خطوط دکھائے جو آپ نے مقدس باپ پائے اعظم اور یورپ کے دوسرے فرما رواؤں کو بھیجے ہیں۔ ان خطوط نے آپ نے دین مسیح کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ ہم آپ کے مبارک عزم کو بھی سراہتے ہیں جو آپ عرض مقدس کو دین مسیح کے دشمنوں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے رکھتے ہیں۔ ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ اس مبارک ارادے کو ضرور عملی جامہ پہنائیے۔ اپنے بارے میں ہم فی الحال یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ عرض مقدس کب پہنچ سکیں گے، کیونکہ ابھی تک پائے اعظم کسی فیصلے پر نہیں پہنچے۔ یہ تھا وہ خط جو انگلستان کے حکمرانوں نے منگولوں کے حکمران ابقا خان کے نام لکھا تھا۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ابقا خان نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اسے حرکت میں لایا، پھر فلسطین، شام اور آرمینیا کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اس نے وسیع پیمانے پر نقل و حرکت شروع کر دی تھی۔ شاید ایسا کر کے وہ سلطان پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ سلطان کے مقابلے میں بیک وقت اس کے لیے کئی محاذ کھول سکتا ہے، لیکن سلطان ایسی زبانی دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہونے والا تھا۔ سلطان کو جب خبر ہوئی کہ منگولوں کے حکمران ابقا خان نے فلسطین، شام اور آرمینیا کی سرحدوں پر اپنے لشکروں کے ساتھ نقل و حرکت شروع کر دی ہے، تو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے قاہرہ سے نکلا۔ سینکڑوں میل پر صعوبت سفر کرنے کے بعد وہ ایشیا کوچک میں داخل ہوا۔ منگولوں کا حکمران ابقا خان اس وقت اپنے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابلیستین کے مقام پر ڈیرے ڈالے ہوا تھا، اور سلطان رکن الدین بھی ابلیستین ہی میں آندھی اور طوفان کی طرح پہنچا اور ابقا خان کے سامنے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا۔ ابلیستین نام کا یہ مقام فلسطین اور شام کی سرحد کے قریب واقع تھا، اور اسی مقام سے متصل بید القاب نام کے میدان میں دونوں لشکر ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے پڑاؤ کر چکے تھے۔ سلطان رکن الدین کے میدان جنگ میں پہنچنے کے دوسرے ہی روز صبح سے منگولوں کے لشکر میں جنگ کے طبل بجنے لگے تھے۔
جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ہلاکو خان کا بیٹا ابقا خان جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان رکن الدین نے بھی بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو استوار کیا اور اس کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی، جب تک ابقا خان کے لشکر میں جنگ کے تبل بجتے رہے اور خونخوار آوازوں میں نعرے لگتے رہے۔ سلطان نے سیف الدین تورنیتا اور حسام الدین اور دیگر سالاروں کو اپنے پاس جمع کیا اور کافی دیر تک پیش آنے والی جنگ سے متعلق ان سے صلح اور مشورہ اور گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد سارے سالاروں کو انہوں نے اپنے اپنے لشکر کے حصوں کی طرف جانے کا حکم دے دیا۔ اب سلطان رکن الدین کے لشکر کی حالت کچھ یوں تھی کہ سلطان نے اپنے حصے کے لشکر کو وسط میں رکھا تھا، دائیں جانب امیر سیف الدین اور بائیں جانب تورنیتائی تھا۔ گویا سلطان نے اپنے لشکر کو 3 ہی حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ حسام الدین کو اپنے نائب کی حیثیت سے سلطان رکن الدین اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ سلطان رکن الدین اور ان کے سالار اپنے اپنے حصوں کے لشکریوں کے سامنے مستعد اور تیار کھڑے تھے۔ شاید سلطان جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ اس بات کی امید رکھتے تھے کہ جنگ کی یہ ابتدا ابقا خان ہی کی طرف سے ہو، اور یہ سارا لائے عمل انہوں نے اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی طے کیا تھا۔ اسی بنا پر سلطان اپنے لشکر کے ساتھ بالکل پرسکون شاید اس انتظار میں تھا کہ کب منگول ان پر حملہ ور ہو اور وہ اپنا ہاتھ اور اپنا رنگ دکھائے۔ تھوڑی دیر بعد ابقا خان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ جفا و شقات کے خونخوار منگول تاریخ عالم کی روح کے ہیولوں کی طرح سلطان رکن الدین کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اپنے تیز اور خوکار حملوں سے منگولوں نے میدان جنگ کو جھلاؤں کا دیس، بجلیوں کا مسکن بنا کر رکھا تھا۔ سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین اور تورنیتائی تھوڑی دیر تک جم کر منگولوں کا مقابلہ کرتے رہے، جس سے منگولوں نے بھی اندازہ لگایا تھا کہ سلطان رکن الدین اور اس کے لشکریوں کو تیز اور خوکار حملہ کرتے ہوئے پسپا کرنا اتنا آسان نہیں جتنا منگولوں نے گمان کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد منگولوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ بری طرح وحشیانہ انداز میں نعرے بازی کرنے لگے تھے، اس لیے کہ لشکر کا وہ حصہ جو خود سلطان رکن الدین کی کمانڈری میں تھا آہستہ آہستہ پسپا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ امیر سیف الدین اور تورنیتائی بھی پسپا اختیار کرتے ہوئے، لیکن ان دونوں کی پسپائی کی رفتار کافی سست اور دھیمی تھی، جبکہ سلطان کا لشکر بڑی تیزی سے پسپا ہو کر پیچھے ہٹتا تھا۔ اس پسپائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابقا خان نے اپنے لشکر کو للکارا تاکہ اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کرے اور پسپائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان اور اس کے سالاروں کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن ابقا خان اور اس کے لشکری شاید نہیں جانتے تھے کہ عنقریب ہر امن کی ڈھالیں یزدان کی تلوار سے کٹنے والی ہے، اور یہ سلطان رکن الدین کی سوچی سمجھی بڑی چال تھی۔ مسلمانوں کی پسپائی کو دیکھتے ہوئے اپنی فتح کی امید کے نعرے لگانے والے منگول ابھی دھوکے اور فریب میں تھے۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا کہ اچانک ان کی حالت بدل گئی۔ تھوڑی دیر تک گھمسان کا رنگ پڑتا رہا۔ منگول یہی خیال کرتے رہے چونکہ مسلمان ایک بار ان کے سامنے پسپا ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کے ہم قدم نہ جمنے دیں گے اور جنگ میں شکست کو ان کا مقدر بنا کر رکھیں گے۔ لیکن قدرت شاید کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے کہ جس وقت پسپائی جاری تھی اچانک ایک تبدیلی اور ایک انقلاب رونما ہوا، اور وہ یہ کہ وسطی لشکر کے درمیان سلطان رکن الدین کی تکبیر بلند ہونا شروع ہو گئی تھی، اور یہ شاید اپنے سالاروں اور لشکریوں کے لیے سلطان رکن الدین کا کوئی خاص اشارہ تھا۔ اس کے بعد سلطان نے بلند آواز میں اپنے لشکریوں کو مخاطب کرنا شروع کیا۔ سنو میرے آتش یہ نفس فرزندوں، تم لوگ تخلیق کا فن اوجھ ہو، ہم سب کی زندگی بھی امتحان میں ہے، موت بھی امتحان۔ یہ دشمن جو بلا کے حبس اور لمحوں کی آوارگی کی طرح تم پر نزول کر رہا ہے، یہ زیادہ دیر تک اپنی اس حالت کو برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ سلطان رکن الدین نے جس وقت پسپا ہوتے ہوئے پہلی تکبیر بلند کی، اسی وقت ہی ان کا اشارہ پاتے ہوئے امیر سیف الدین تورنیتائی حرکت میں آ چکے تھے۔ چونکہ سیف الدین اور تورنیتائی کی پسپا ہونے کی رفتار سست تھی اور ان کے مقابلے میں سلطان رکن الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تیزی سے پسپا ہوئے تھے، لہٰذا منگولوں کا لشکر جو میدان جنگ میں سلطان رکن الدین سے ٹکرا رہا تھا وہ کافی آگے بڑھ آیا تھا، اور امیر سیف الدین اور تورنیتائی کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے درمیان میں سلطان کے تعاقب میں آگے بڑھنے والا منگولوں کا لشکر اس قدر آگے بڑھا تھا کہ سلطان اس کے لشکر کے سامنے تھے، اور امیر سیف الدین اور تورنیتائی اب اسی لشکر کے دائیں بائیں ہو کر رہ گئے تھے۔ جس وقت سلطان نے پہلی تکبیر بلند کی تھی، شاید امیر سیف الدین اور امیر تورنیتائی سلطان کی طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق ہی حرکت میں آ گئے تھے۔ سلطان کی ان تکبیروں کے جواب میں امیر سیف الدین کی گرد و پیش کے ہنگاموں کو نظر انداز کرتا ہوا قیامت کے مراحل روح کی وحشت کی طرح منگولوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ امیر سیف الدین کے ساتھ ساتھ ہی تکبیریں بلند کرتے ہوئے امیر تورنیتائی بھی لذتوں سے شرابور عجیب جادو کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ منگولوں کے لشکر کا وہ حصہ جو سلطان کے تعاقب میں کافی آگے تک بڑھا آیا تھا، اس کے بائیں پہلو پر سیف الدین اور دائیں پہلو پر تورنیتائی نے ہوش اور ہوس کی طرح
ضربے لگانا شروع کر دی تھی۔ تیسری جانب سلطان رکن الدین جو تھوڑی دیر پہلے اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے سامنے پسپائی اختیار کیے ہوئے تھے وہ سنبھل گیا تھا۔ یہ پسپائی ایک ضابطے اور پہلے سے طے شدہ رد عمل کے تحت کی گئی تھی تاکہ منگولوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے۔ امیر سیف الدین اور ترنتائی کے منگولوں کے دائیں بائیں سمتوں پر حملہ ور ہونے کے ساتھ ہی سلطان رکن الدین اور حسام الدین نے بھی ایک خوفناک کروٹ لی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک جہاں سلطان اور حسام الدین پسپائی اختیار کر رہے تھے وہاں ایک دم انہوں نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ پھر دونوں اپنے سامنے منگولوں پر رموز حیات میں وحشت، بام میں درد، بے خودی کی کیفیت کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے۔ منگولوں کے لشکر کا وہ حصہ جو سلطان کے تعاقب میں کافی آگے تک بڑھ آیا تھا، اس کے بائیں پہلو پر سیف الدین، دائیں پہلو پر ترنتائی اور سامنے کی طرف سے سلطان رکن الدین اور حسام الدین ناقابل تلفی ضربے لگا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد منگولوں کے اس لشکر نے اندازہ لگایا کہ اگر کچھ دیر تک مزید جنگ جاری رہی تو ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا، لہٰذا انہوں نے فوراً پسپائی اختیار کر لی۔ لیکن یہ پسپائی بھی اب ممکن نہ رہی تھی، اس لیے کہ دائیں بائیں سے زوردار حملہ ور ہوتے ہوئے امیر سیف الدین اور ترنتائی نے منگولوں کے آگے بڑھنے والے لشکر کو ان کے اصل لشکر سے کاٹ دیا تھا۔ پھر تین اطراف کے اس حملے نے منگولوں کے لشکر کے اس حصے کو مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ تعاقب کرنے والے منگولوں کے لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کی ہیبت پر درست کی۔ سلطان بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ سیف الدین پہلے کی طرح سلطان کے دائیں پہلو پر، ترنتائی بائیں پہلو پر آ گیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک ساتھ بڑے خوفناک انداز میں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ منگولوں پر یلغار کر دی تھی۔ سلطان رکن الدین، سیف الدین، ترنتائی اور حسام الدین کی اس طرح حملہ ور ہونے سے چاروں طرف ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ گویا دل کے شب خانوں میں دکھی روحوں کے نواح اور شعور کے شیشے محل میں نامہربانیوں کی رکائیں رقص کر گئی تھی۔ جلد ہی سلطان اور اس کے سالاروں نے منگولوں پر جان لیوا حملے کرتے ہوئے ان کی حالت کو یکسر بدل دیا تھا۔ اس ہولناک جنگ کی تھوڑی ہی دیر بعد بیر الطاف کا میدان جنگ کی شعلوں کی بستی جیون کی خونی چنچال کی طرح ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر جم کر سلطان رکن الدین کا مقابلہ کرے اور کسی نہ کسی طرح انہیں پسپا ہونے پر مجبور کرے، لیکن ان کی ہر کوشش، ان کا ہر جتن ناکام رہا۔ سلطان اور اس کے سالار لمحہ بہ لمحہ اپنے حملوں میں تیزی اور خونخواری پیدا کرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر سلطان نے اپنا داہنی پرانا جنگی طریقہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یعنی دشمن کے سامنے سے وہ خود ضربے لگا رہے تھے، جبکہ سیف الدین اور ترنتائی کو انہوں نے دشمن کے پہلو پر حملہ ور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ سلطان کا یہ حکم ملتے ہی امیر سیف الدین اور ترنتائی آہستہ آہستہ دشمن کو کاٹتے ہوئے ان کے بازو کی طرف پھیلتے چلے گئے تھے۔ پھر انہوں نے جب دشمن کے پہلو پر جا کر جنگ کی بھٹی پہلے سے بھی زیادہ گرم کر دی، تب منگول محسوس کرنے لگے جیسا ان کے پاؤں تلے سے کسی نے زمین سرکا دی ہو۔ سامنے کی طرف سے اب سلطان رکن الدین، دائیں بائیں سے سیف الدین، ترنتائی نے ان کا مکمل طور پر قتل عام شروع کر دیا تھا۔ منگولوں کا لشکر جب آدھا کٹ کر میدان میں ڈھیر ہو گیا تب منگول مایوس ہو گئے اور انہیں اپنی شکست یقینی دکھائی دینے لگی تھی۔ تب وہ اپنے پڑاؤ کی ہر چیز چھوڑ کر شکست اٹھاتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس جنگ میں گویا سلطان رکن الدین کے کئی مہلک زخم لگ گئے تھے، لیکن بھاگتے ہوئے دشمن کا انہوں نے پوری طاقت اور قوت سے تعاقب کیا۔ میلوں تک ہلاکو خان کے بیٹے افقا خان کے لشکر کو کاٹتے ہوئے سلطان نے اس کے لشکر کی تعداد کم کی۔ پھر سلطان میدان جنگ میں واپس لوٹا۔ منگولوں کی پڑاؤ کی ہر شے پر اس نے قبضہ کر لیا۔ میدان جنگ میں چاروں طرف منگولوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ بیر الطاف میں منگولوں کو بدترین شکست دے کر سلطان رکن الدین نے معرکہ عین جالوت کی یاد تازہ کر دی تھی، جس میں سلطان نے ہلاکو خان کے لشکر کو بدترین شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہر صورت اس جنگ نے منگولوں پر سلطان رکن الدین کی طاقت کا روب بٹھا دیا اور وہ سمجھ گئے کہ مصر اور شام پر حملہ کرنا بہت مہنگا سودا ہے۔ منگولوں کو شکست دینے اور ان کے پڑاؤ کے ہر شے پر قبضہ کرنے کے بعد اسی روز سلطان رکن الدین اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دمشق پہنچنے کے بعد بیر الطاف کی جنگ میں جو سلطان رکن الدین کو زخم آئے تھے ان کی وجہ سے سلطان بیمار ہو گیا۔ طبیبوں نے جو علاج بھی ہو سکتا تھا کیا، لیکن سلطان کا چونکہ آخری وقت آ چکا تھا لہذا کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ یوں 27 مئی محرم 767 ہجری کو تاریخ عالم کی بطل جلیل نے 57 برس کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ سلطان رکن الدین کی وفات پر سارے عالم اسلام میں گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا گیا اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی گئی تھی۔ اس کے برعکس نصرانی اور صلیبی، منگول اور دیگر دشمنوں نے اپنے اس سبب سے
अपने सबसे बड़े हरीफ की मौत पर बेपनाह खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। दमिश्क शहर को एक बार फिर यह शर्फ हासिल हुआ कि उसने अपने दौर के सबसे बड़े मुजाहिद इस्लाम की जसद खाकी को अपने खाक के अंदर जज्ब किया। इससे पहले यह शहर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मतफन बनने की सादत हासिल कर चुका था। इत्तिफाक की बात है कि तारीख आलम की इन तीनों अजीम शख्सियतों ने सलेबियों के खिलाफ मारका हरियों में नाम पैदा किया। इन तीनों ने दमिश्क में सफर आखिरत इख्तियार किया और तीनों दमिश्क ही में आसूद खाक हुए। दमिश्क में सुल्तान नूरुद्दीन का मकबरा उसके लक़ब अल मलिक अज़्ज़ाहिर की निस्बत से अज़्ज़ाहिरिया कहलाता है। वहाँ आजकल एक अजीम शान कुतुब खाना है। सुल्तान रुकनुद्दीन की वफात के बाद चंद माह तक उसके बेटे हुक्मरान रहे, लेकिन वो सुल्तान रुकनुद्दीन जैसी काबिलियत, शुजाअत और दूरअंदेशी ना रखते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि चारों तरफ बगावतें गद्दार सा उठ खड़ा हुआ था। सबसे पहले वाली दमिश्क शरफुद्दीन संजर ने बगावत कर दी। उसको ख्याल हुआ कि सुल्तान रुकनुद्दीन फौत हो चुका है, उसके मरने के बाद ऐसी कोई कुव्वत नहीं जो उस पर काबू पा सके, लिहाजा उसने बगावत करते हुए अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और दमिश्क का सुल्तान होने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब मंगोलों को जब खबर हुई कि सुल्तान रुकनुद्दीन वफात पा चुका है, तो उन्होंने भी एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और वो भी मुसलमान इलाकों पर हमलावर होने के लिए पर तुलने लगे। तीसरी जानिब सलेबी भी चुप ना बैठे थे। सुल्तान रुकनुद्दीन की मौत उनके लिए एक तरह की खुशखबरी थी और सुल्तान की मौत का सुनते ही उन्होंने चारों तरफ से सलेबी जंग के लिए लश्करों को तराबलस में जमा करना शुरू कर दिया। इस तरह सलेबी तराबलस में अपनी ताकत और कुव्वत को जमा करते हुए सुल्तान के हाथों अपनी गुज़िश्ता शिकस्तों का इंतकाम लेने का इरादा कर चुके थे। जब चारों तरफ से खतरात उठते दिखाई देने लगे, तब उनके आगे बंद बांधने के लिए अमीर सैफुद्दीन को सुल्तान बनाया गया। तख्त नशीन होने के साथ ही सुल्तान सैफुद्दीन ने अमीर तुर्निताई को अपने लश्करों में सिपह सालार आला और हुसामुद्दीन को सालार अव्वल मुकर्रर किया। एक रोज अमीर तुर्निताई और रूदा अपनी हवेली की दीवान खाने में बैठे किसी मौजू पर बाहम गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक रूदा को कोई ख्याल गुजरा और उसने तुर्निताई को मुखातिब किया, क्या आपको उस लड़की का पता चला जो कई मौके पर आपकी जान बचा चुकी है और आप पर हमलावर होने वालों को मौत की घाट उतार चुकी है? रूदा के सवाल पर तुर्निताई ने बड़े गौर से रूदा की तरफ देखा और कहा, देख रूदा, उस लड़की का पता ना चला ना ही बेहतर है, इसलिए कि वो लड़की हमें मिल गई तो सबके लिए नुकसानदाह होगी। ये अल्फाज अमीर तुर्निताई ने हसरत आमेज लहजे में कहे थे। जवाब में रूदा भी फौरन बोल पड़ी, वो लड़की जो माजी में आपकी हिफाजत का बाइस बनती रही, वो आखिर हमारे नुकसानदेह कैसे साबित हो सकती है? जवाब में तुर्निताई फिर बोल पड़ा, सुन रूदा, वो लड़की चूंकि छुप छुप कर मेरी हिफाजत करती रही, मुझ पर हमलावर होने वालों को मौत की घाट भी उतारती रही। मैं समझता हूँ ऐसा सिर्फ इस बिना पर कर रही है कि वो मुझे पसंद करती है। याद रखो, मेरा कोई अजीज और रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो एक काम करे। उस लड़की का एक काम इस बात की गमाजी करता है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लिहाजा अगर वो मुझे मिल जाती है तो फिर मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा, तेरी मोहब्बत बढ़ जाएगी जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही नुकसानदेह है। इस पर रूदा बड़े फराख दिलाना से अंदाज में बोल पड़ी, अमीर तुर्निताई, ये आपकी खुश फहमी है। वो लड़की मेरे लिए किसी भी सूरत में खतरे का बायस नहीं बन सकती। अगर वो मिल जाती है और आपसे शादी की ख्वाहिशमंद है तो कसम खुदाबंद कुद्दूस की मैं उसके आड़े नहीं आऊंगी, बल्कि मैं समझती हूँ कि अगर वो मिल जाए तो मैं खुद उसकी शादी आपसे कराऊंगी। इस तरह हम दोनों मिलकर बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत कर सकेंगे। इस मौके पर तुर्निताई ने तौसीफी अंदाज में रूदा की तरफ देखा। रूदा, तू एक अजीम लड़की है, तुम्हारे सुलूक, तुम्हारी इन आदतों पर मैं हमेशा फख्र करता रहूंगा। यहां तक कहते कहते तुर्निताई को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि हवेली के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। तुर्निताई फौरन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और रूदा की तरफ देखा। रूदा, तुम यही बैठो, मैं देखता हूँ दस्तक देने वाला कौन है। इसके साथ ही तुर्निताई दीवान खाने से निकला। उसने जब सदर दरवाजा खोला तो हवेली के सदर दरवाजे पर सुल्तान सैफुद्दीन के मुहाफिज दस्तों का सालार खड़ा था। जो ही तुर्निताई ने दरवाजा खोला, उस सालार ने बड़ी अकीदतमंदी से तुर्निताई को मुखातिब किया, अमीर सुल्तान ने आपको किसी इंतहाई अहम काम के सिलसिले में तलब किया है। सुल्तान इस वक्त दारुल अदल में बैठे हैं, सारे मशीर और अदालिया का अमला इस वक्त वहाँ मौजूद है और सुल्तान ने फिलफौर आपको तलब किया है। जवाब में तुर्निताई फौरन बोल पड़ा, तुम चलो, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। इसके साथ ही वो सालार चला गया। तुर्निताई ने हवेली का दरवाजा बंद किया, फिर वो दीवान खाने में आया और रूदा को मुखातिब करके कहने लगा, रूदा, मुझे सुल्तान ने तलब किया है, मैं जाता हूँ। मेरे ख्याल में कोई इंतहाई अहम और ज़रूरी काम है, इसलिए कि सुल्तान अपने सारे मशीरों और अदालिया के कारकुनों के अलावा काजियों का भी इजलास तलब कर चुके हैं
और आने वाले सालार का कहना है कि सिर्फ मेरा इंतजार किया जा रहा है, लिहाजा मैं जाता और बहुत जल्द लौट कर आऊंगा। जवाब में रुदा ने कुछ ना कहा। वो दीवान खाने से निकली तो निताई का हाथ पकड़कर वो अपने ख्वाबगाह की तरफ ले गई थी। पहले उसने तो निताई की तैयारी कराई, फिर उसका हाथ पकड़कर हवेली के सदर दरवाजे तक आई। तो निताई को रुखसत करके दरवाजा बंद किया और हवेली के सुकूनती हिस्से की तरफ चली गई। तो निताई जिस वक्त कैसर के दारुल अदल में दाखिल हुआ तो उस वक्त सुल्तान सैफुद्दीन मजलिस में मौजूद थे और हर कोई अपनी अपनी नशिस्त पर बैठा हुआ था। सिर्फ तो निताई की नशिस्त खाली थी। तो निताई तेजी से आगे बढ़ा। हाजिरीन मजलिस को उसने सलाम किया, फिर वो नशिस्त पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर तक खामोशी रही। उसके बाद दारुल अदल में सुल्तान सैफुद्दीन की आवाज़ गूंज गई, मेरे रफीकान कार, मुझे तुनिताई का इंतजार था। अब जबकि तुनिताई यहाँ पहुँच चुका है, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। इसके बाद सुल्तान सैफुद्दीन ने बराह रास्त तुनिताई को मुखातिब किया, तुनिताई मेरे बेटे, तुम्हें खबर है कि दमिश्क के हाकिम शरफुद्दीन संजर ने मरकज से बगावत कर रखी है। अगर ये बगावत तूल पकड़ती है तो हर सूरत में हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। दमिश्क का हाकिम शरफुद्दीन संजर का यह ख्याल करने लगा है कि सुल्तान रुकनुद्दीन की वफात के बाद कोई ऐसी कुव्वत नहीं है जो उसे सबक सिखाए या उसका हाथ पकड़कर सीधे रास्ते पर चलने की तंबीह करे। तो निताई मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ कि शरफुद्दीन संजर के खिलाफ लश्कर कशी की जाए और जो लश्कर शरफुद्दीन संजर की बगावत फरोग करने के लिए रवाना हो उसकी कमांडरी तुम खुद करो। करो इस सिलसिले में तुम कुछ कहोगे? तो निताई ने एक बार बड़े गौर से सुल्तान सैफुद्दीन की तरफ देखा, फिर आजीजी में उसकी आवाज़ सुनाई दी, सुल्तान मोहतरम, आप बचपन से लेकर जवानी तक तुनिताई को खूब अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए कि तुनिताई के साथ आपने हमेशा बेटों का सा सलूक किया है। सुल्तान मोहतरम, आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। आप जब भी पसंद करेंगे मैं लश्कर लेकर शरफुद्दीन संजर की सरगोबी के लिए रवाना हो जाऊंगा और आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर सूरत में संजर को जेर और मगलूब करके कामयाब लौटूंगा। तो निताई का यह जवाब सुनकर सुल्तान सैफुद्दीन के लबों पर गहरी मुस्कुराहट नमदार हुई। उसके साथ ही उनकी आवाज़ फिर सुनाई दी, तो निताई मेरे बेटे, कसम खुदावंद कुद्दूस की, मुझे तुमसे ऐसी ही जवाब की तवक्कुल थी। सुन मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम कल ही लश्कर के साथ दमिश्क की तरफ रवाना हो जाओ। हुसामुद्दीन एक नायब की हैसियत से तुम्हारे साथ होगा। इस सिलसिले में जो मैंने लाए अमल तैयार किया वो भी गौर से सुनो। शरफुद्दीन संजर को यकीन हो चुका है कि वो बगावत करके एक खुद मुख्तार हुक्मरान बन सकता है, लेकिन हम उसके ख्वाब को पूरा ना होने देंगे। देख बेटे, जब तुम लश्कर लेकर दमिश्क के करीब पहुंचोगे तो शरफुद्दीन संजर तुम्हारे मुकाबले पर आएगा, इसलिए कि बगावत का ऐलान करने से पहले उसने अपनी हिफाजत और जंग के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया था और उसके बलबूते पर वो हमसे टकराने के लिए तुला हुआ है। तो निताई मेरे बेटे, जब शरफुद्दीन संजर का तेरे साथ सामना हो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि शरफुद्दीन को कत्ल मत करना, उसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने पेश करना। फिर मैं उससे बास पुरस करूंगा कि उसने सुल्तान रुकनुद्दीन की वफात के बाद हमारी हुकूमत को क्यों कमजोर और नातवा समझा और कैसे उसने बगावत और सरकशी करने की जसारत की। सुन तू निताई मेरे बेटे, जब तू शरफुद्दीन संजर पर गलबा हासिल कर ले, उसे शिकस्त दे और उसे जिंदा गिरफ्तार कर ले, तब तू अपनी तरफ से अपने साथी हुसामुद्दीन को दमिश्क का वाली मुकर्रर करना। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान सैफुद्दीन लम्हे भर के लिए खामोश रहे। फिर उसके बाद हुसामुद्दीन की तरफ देखा। हुसामुद्दीन मेरे बेटे, गो मैंने सुल्तान बनने के बाद तुम्हें लश्करियों का सालार अव्वल मुकर्रर किया था, इसलिए कि तू निताई के सिपे सालार आला बनने की वजह से सालार आला की नशिस्त खाली थी। देख बेटे, अब मैं तेरी जरूरत दमिश्क में महसूस करता हूँ। शरफुद्दीन ने दमिश्क में बगावत करके मुझे चौकन्ना और मुहतात कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि शरफुद्दीन को जब शिकस्त हो तो दमिश्क के वाली के तौर पर तुम काम करो, ताकि मैं शुमाली इलाकों की तरफ तुम्हारी वजह से मुतमईन हो जाऊँ। जवाब में हुसामुद्दीन फौरन बोल पड़ा, सुल्तान मुअज्जम, मेरी इतनी मजाल कहा कि मैं आपके फैसले के खिलाफ बोलूँ। सुल्तान, मैं जानता हूँ कि जो फैसला भी आप करेंगे मैं उसमें हमारे और सारी कौम की बेहतरी पनाह होगी। अगर आप समझते हैं कि मैं दमिश्क के वाली की हैसियत से आप और आपकी कौम की बेहतर खिदमत कर सकता हूँ तो मैं दमिश्क का वाली बनने के लिए तैयार हूँ। हुसामुद्दीन का ये जवाब सुनकर सुल्तान सैफुद्दीन खुश हो गए थे। उसके बाद एक बार उन्होंने तुनिताई को फिर मुखातिब किया, तुनिताई मेरे बेटे, मैं जानता हूँ कि तेरी नई नई शादी हुई है। मेरे ख्याल में जब कल तू यहाँ से दमिश्क की तरफ रवाना होगा तो रुदा भी तुम्हारे साथ जाने पर इसरार करेगी, लिहाजा मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम रुदा को अपने साथ लश्कर में रख सकते हो, इसे साथ ले जा सकते हो। और हुसामुद्दीन, तुम भी सुनो, तुम चूंकि जंग के बाद दमिश्क के वाली के हैसियत से काम करोगे, तुम भी अपनी बीवी बच्चे और अहले खाना को अपने साथ ले जा सकते हो। इसके साथ ही सैफुद्दीन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो इजलास उसने बर्खास्त कर दिया था। इजलास में बैठे अफराद भी भारी भारी दारुल अदल से निकल गए थे। थोड़ी देर बाद तो निताई अपनी हवेली की सदर दरवाजे पर आया और दस्तक दी। फिलफौर ही दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुद रुदा ने खोला था। लगता था वो बड़ी बेचैनी से तुनिताई की वापसी का इंतजार कर रही थी।
जो ही तुर्निताई अंदर दाखिल हुआ, रुदा ने दरवाजा बंद किया और फिर बड़ी बेचैनी में तुर्निताई से पूछा, सुल्तान ने आपको क्यों तलब किया था? तुर्निताई मुस्कुराने लगा, कहने लगा, दीवान खाने में आओ, मैं तुम्हारे साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करता हूँ। दोनों मियाँ बीवी दीवान खाने में आकर बैठ गए थे। उसके बाद तुर्निताई ने गुफ्तगू का आगाज किया, देख रुदा, तू पहले ही जानती है कि दमिश्क के हाकिम शरफुद्दीन संजर ने बगावत कर रखी है। सुल्तान ने मुझे इसलिए तलब किया था कि मैं लश्कर लेकर दमिश्क की तरफ रवाना हूँ, और सुल्तान ने यह भी हुक्म दिया कि शरफुद्दीन संजर को जिंदा गिरफ्तार करने के बाद दमिश्क का वाली हुस्सामुद्दीन को बना दिया जाए। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि कल मैं यहाँ से अपने लश्कर के साथ दमिश्क की तरफ कूच करूंगा। रुदा ने गौर से तुर्निताई की तरफ देखते हुए पूछा, और मैं? तुर्निताई मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारा क्या है? तुम जिस तरह पहले रही थी इसी तरह यही हवेली में रहोगी। मैंने सुल्तान की मैयत में हिलाकू खान के बेटे अबका खान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था और तुम हवेली में ही रही थी। इस तरह अब भी तुम हवेली में रह सकती हो। रुदा की तरफ देखते हुए शरारत अमेज अंदाज में तुर्निताई ने कहा, हरगिज नहीं, मंगोलों के खिलाफ जब आपने जंगों में हिस्सा लिया था, मैं उस वजह से आपके साथ नहीं गई थी कि सुल्तान रुकनुद्दीन ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं यही रहूं, लिहाजा सुल्तान का कहा मानते हुए मैं आपके साथ जाने से रुक गई थी। तुर्निताई फौरन बोल पड़ा, अगर ये मामला है तो मैं सुल्तान सैफुद्दीन से भी तुम्हें कहलवा दूंगा कि मेरे लश्कर की रवानगी पर भी तुम यही रहो और मेरे साथ जाने पर इसरार ना करो। नहीं, इस बार मैं हर सूरत में आपके साथ जाऊंगी। अगर आपके कहने पर सुल्तान सैफुद्दीन ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उन्हें इस बात पर आमदा करने की कोशिश करूंगी कि मेरा आपके साथ जाना इंतहाई जरूरी है। इस पर तुर्निताई प्यार भरी आवाज में कहने लगा, देख रुदा, मैं तो यूं ही तेरे साथ मजाक उड़ा रहा था। सुल्तान ने खुद मुझे इजाजत दी है कि मैं तुम्हें लश्कर में शामिल रखूं और अपने साथ दमिश्क में भी ले जाऊं, लिहाजा मैं इस वक्त लश्करगाह की तरफ जा रहा हूं। कल लश्कर यहाँ से कूच करेगा, तुम अभी इसे अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लो। रुदा अपने शोहर का फैसला सुनकर बेहद खुश हुई। फौरन ही अपनी जगह से उठी और पूरे जोरदार अंदाज में वो तुर्निताई से लिपट गई थी। फिर उसका शुक्रिया अदा करने लगी थी। उसके बाद दीवान खाने से निकलकर रुदा हवेली के दूसरे हिस्से की तरफ चली गई, जबकि तुर्निताई हवेली से निकलकर शहर से बाहर लश्करगाह की तरफ चला गया। दूसरे रोज तुर्निताई एक जर्रार लश्कर लेकर काहिरा से दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। रुदा उसके साथ थी, जबकि हुस्सामुद्दीन भी एक नायब की हैसियत से उसके साथ काम कर रहा था। तुर्निताई जिस वक्त अपने लश्कर के साथ दमिश्क के नवाह में पहुंचा तो उसने लश्कर को रुक जाने का हुक्म दे दिया, इसलिए कि उसके थोड़े ही फासले पर दमिश्क शहर के नवाह में शरफुद्दीन संजर तुर्निताई की राह रोकने और उसे जंग करने के लिए पहले ही एक बहुत बड़े लश्कर के साथ पड़ाव कर चुका था। इस सूरत हाल देखते हुए तुर्निताई ने भी फौरन शरफुद्दीन संजर के सामने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दे दिया। बागी हाकिम दमिश्क शरफुद्दीन खूब अच्छी तरह जानता था कि अमीर तुर्निताई उन जवानों में से जो दिल के आबिगनों में दुआओं को किरचियां उखेड़ करने का फन जानता है। शरफुद्दीन संजर जानता था कि अमीर तुर्निताई बड़ा जुर्रतमंद अमीर है। तुर्निताई ने जंग करने का इरादा कर लिया था। शरफुद्दीन संजर यह भी जानता था कि माजी में तुर्निताई अपनी कौम के दुश्मनों पर किस कदर खौफनाक हमले करता रहा है। दोनों लश्कर एक रात और एक दिन एक दूसरे के सामने पड़ाव किए रहे। तीसरे रोज दोनों लश्कर ने जंग की इब्तिदा करने के लिए एक दूसरे के सामने सफ आरा होना शुरू कर दिया था। दोनों जानिब तकबीरें बुलंद होने के साथ साथ जंग के तबल भी बजने लगे थे। ये पहला मौका था कि तुर्निताई मुसलमानों के लश्कर के खिलाफ सफ आरा हो रहा था, जिसने हकीम में वक्त के खिलाफ बगावत कर दी थी और वो इस बगावत को हर सूरत में कुचलने का आज़म किए हुए था। जिस वक्त सफ़ें दुरुस्त हो रही थी, तुर्निताई अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ उस जगह आया जहां अपने हिस्से के लश्कर के साथ हुस्सामुद्दीन खड़ा था। हुस्सामुद्दीन के करीब तुर्निताई रुका। फिर तुर्निताई ने उसे मुखातिब किया, देख हुस्सामुद्दीन मेरे भाई, मैंने लश्कर के पीछे जो पड़ाव रखा है उसकी हिफाजत के लिए कुछ दस्ते मुकर्रर किए हैं। सारी औरतें भी पड़ाव के अंदर हैं और उनकी हिफाजत का भी मैंने खातिर खा इंतजाम कर दिया है। सुन हुस्सामुद्दीन मेरे भाई, ये पहला मौका है कि मैं और तुम तन्हा और अकेले मुसलमानों के खिलाफ सफारा हो रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती और बदबख्ती है कि शरफुद्दीन ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत करके मुसलमानों के दो गिरोहों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा कर दिया है। लेकिन मैंने इरादा कर रखा कि मैं उस शरफुद्दीन संजर को इबरत ना शिकस्त दूंगा, ताकि आने वाली दूसरी नस्लों को एहसास हो कि मुसलमानों के खिलाफ बगावत की क्या सजा मिलती है। हुस्सामुद्दीन मेरे भाई, हमले में मैं और तुम पहल नहीं करेंगे। हमले की इब्तिदा शरफुद्दीन संजर को करने दो। मेरा और तुम्हारा जंग करने का तरीका वही होगा जो सुल्तान के मातहत रहते हुए हम करते रहे हैं। अपने आप को पहले दिफा तक महदूद रखेंगे। शरफुद्दीन संजर के हमलों को पूरी तरह रोकने के बाद हम अपनी जवाबी कार्रवाई करेंगे और संजर को बता देंगे कि बगावत के नताइज किस कदर भयानक होते हैं। हुस्सामुद्दीन मेरे भाई, दिफा से निकलकर जब जारियत पर उतरेंगे तो अपने लश्कर को दाएं बाएं फैलाते चले जाना और दुश्मन की सफ़े काटते हुए पेशकदमी की इब्तिदा करना।
अमीर तुर्निताई जब खामोश हुआ तब बड़ी आजीजी बड़ी इंकिसारी में हुसामुद्दीन ने जवाब देना शुरू किया। अमीर, आप बिल्कुल मुतमईन और पुरसुकून रहे। मैं बागियों पर आपकी ख्वाहिश आपकी मर्जी के मुताबिक ज़रब लगाऊंगा और आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस पहलू पर हमलावर होने के लिए आप मुझे हुक्म दे रहे हैं वहाँ मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ज़रब लगाते हुए बागियों को अपने सामने जेर और मगलूब करके रख दूंगा। हुसामुद्दीन का यह जवाब सुनकर तुर्निताई के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाथ आगे बढ़ाकर उसने हुसामुद्दीन शाना थपथपाया, फिर अपने घोड़े को उसने मोड़ा और अपने हिस्से के लश्कर के सामने जाकर वो खड़ा हो गया। दमिश्क के बागी वाली शरफुद्दीन ने जब देखा कि उसके मुकाबले में तुर्निताई ने अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है तो उसने भी अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हुसामुद्दीन का मुकाबला करने के लिए जो लश्कर का हिस्सा उसने मुख्तस किया था उसकी कमांडरी उसने अपने एक नायब के हवाले की थी। दूसरे लश्कर की कमांडरी उसने अपने हाथ में रखी थी और उसने तुर्निताई का सामना करने की ठान ली थी। शरफुद्दीन संजर तुर्निताई से मुकाबला करने की हिम्मत इसलिए कर रहा था कि उसके लश्कर की तादाद उस लश्कर से कहीं ज्यादा थी जो तुर्निताई की कमांडरी में उसके मुकाबला करने के लिए सफ आरा हुआ था। अपनी अददी बरतरी की बिना पर वो ये उम्मीद लगा बैठा कि तुर्निताई को शिकस्त देकर उसे पसपा होने पर मजबूर कर देगा, लेकिन कुदरत दमिश्क के नवाब में खुले मैदानों में लड़ी जाने वाली इस जंग के मुतालिक कुछ और ही अहम फैसला कर चुकी थी। थोड़ी देर तक शरफुद्दीन संजर के लश्कर में जंग की इब्तिदा करने से पहले जंग के तबल बजने शुरू हो गए थे। इस मौके पर शरफुद्दीन संजर के लश्कर में दर्द के लंबे सफर वक्त के बेलगाम लम्हों की तरह हमलावर हो गया था। अपने तयशुदा लाए अमल के मुताबिक तुर्निताई और हुसामुद्दीन दोनों ने पहले अपने आप को दिफा तक महदूद रखा। पहले उन्होंने शरफुद्दीन संजर के लश्कर को रोका और उन हमलों को उन्होंने रोका भी कमाल अंदाज में था। शरफुद्दीन के हमलों को सामने तुर्निताई और हुसामुद्दीन दोनों मज़ाहमत के समुंदर के राज की तरह हमलावर हो गए थे। थोड़ी देर तक तुर्निताई ने अपने लश्कर को दिफा तक ही महदूद रखा था। वो शरफुद्दीन और उसके लश्करों को थका मारने का अज़म कर चुका था। उसके बाद तुर्निताई ने लगातार तकबीरें बुलंद करना शुरू कर दी। वो वही तरीका इस्तेमाल कर रहा था जो जंगों में सुल्तान रुकनुद्दीन इस्तेमाल किया करता था। जारियत इख्तियार करने से पहले सुल्तान रुकनुद्दीन भी अक्सर और बेशतर तकबीरें बुलंद करते हुए सालारों को तंबीह करते थे। उसके बाद दुश्मन पर वो खच्चे उड़ाते हुए चले जाते थे। तुर्निताई ने भी यही तरीका इस्तेमाल किया। उसने तकबीरें बुलंद करना शुरू की। उसके लश्करियों के लिए यह पैगाम था कि अनकरीब वो जोरदार हमला करना चाहता है। दूसरी जानिब हुसामुद्दीन के लिए भी यह पैगाम था कि वो नए अंदाज में हमला करने के लिए तैयार हो जाए। थोड़ी देर तक तकबीरें बुलंद करने के बाद तुर्निताई ने करवट बदली। दिफा से वो निकला जारियत पर उतरा। फिर शरफुद्दीन संजर के हिस्से के लश्कर पर वो सारी यकसुई बर्बाद कर देने वाले मलामतों की तूफान, ख्वाबों को बेअज़मत कर देने वाले आधी रात की तूफानी झगड़ों और धूप मांगते अबर बदगुमानियों की तरह हमलावर हो गया था। तुर्निताई के यूं हमलावर होने की थोड़ी देर बाद हुसामुद्दीन ने भी अपना रंग दिखाना शुरू किया। फिर उसने भी दिफा को तर्क कर दिया और अपने लश्कर के साथ जारियत पर उतर आया। थोड़ी देर तक यूं ही जंग जारी रही। उसके बाद शरफुद्दीन ने देखा कि उसके लश्कर पीछे हट रहे हैं, लिहाजा जब उसे ये महसूस हुआ कि अब वो अमीर तुर्निताई का मुकाबला नहीं कर सकता, शरफुद्दीन भागकर दमिश्क शहर में महसूल हो जाने की सारी उम्मीदें कर बैठा था। लेकिन जैसे वो भागने लगा, अमीर तुर्निताई और हुसामुद्दीन ने उसका ताक़ुब किया और उसकी सारी उम्मीदों को ख़त्म कर दी। अब वो दोनों जानिब से उसके बाकी साथियों का कत्लेआम शुरू हो गया था। सामने की तरफ से तुर्निताई अपने सामने टकराने वाले हर शय को खुद में डुबोता चला जा रहा था। शरफुद्दीन का साथ देने वाले जिन बागियों ने हथियार डालकर माफ़ी तलब की थी, उन्हें तुर्निताई ने फराख दिली से काम लेते हुए माफ़ कर दिया और उन्हें दमिश्क शहर की तरफ चले जाने का हुक्म दे दिया। वहीं तुर्निताई ने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया और फिर दमिश्क के बागी वाले शरफुद्दीन संजर को अपने सामने पेश करने का हुक्म दे दिया। थोड़ी देर बाद जब शरफुद्दीन संजर को तुर्निताई के सामने पेश किया गया तो उसके हाथ उसके पुष्ट पर बंधे हुए थे। तुर्निताई थोड़ी देर तक तहर मानी बड़े गुस्से और बड़े गजबनाक अंदाज में शरफुद्दीन की तरफ देखता रहा। फिर उसे मुखातिब किया, शरफुद्दीन, तूने किस बिना पर बगावत खड़ी करते हुए अपने लिए जंदान की काली सलाखतों को आवाज़ दी? क्या सोचकर तूने जुल्मत और तशद्दुद की मीज़ान खड़ी की? अपने साथियों को वक्त के गहरे खूनी सागर में डुबोने की कोशिश की? क्यों तूने शैतान के खूनी इशारे पर लफ्ज़ इंसानियत, अफियत के आंचलों, जवानों के पुरअज़म तेवर, तहजीब के दिल की तरह सुल्तान रुकनुद्दीन की वफात के बाद तूने बगावत खड़ी करने की कैसी जुर्रत और जसारत की? क्या तूने नहीं जानता था कि सुल्तान रुकनुद्दीन के साथ वो लोग हैं जो बड़े बड़े जाबिर और जालिम हुक्मरानों के कैसर आराम और निशात को मुकद्दर जंजीर में जकड़ देने का फन जानते हैं?
यहाँ तक कहते कहते तुर्निताई को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि शरफुद्दीन संजर फौरन आगे बढ़ा और अपने आप को उसने तुर्निताई के कदमों में गिरा दिया और गिड़गिड़ाते हुए लहजे में कहने लगा, तुर्निताई, मैं जानता हूँ आप इस वक्त सुल्तान सैफुद्दीन के लश्करों के सिपह सालार आला है। अगर आप चाहें तो मुझे माफ़ी मिल सकती है। मैं खुलूस दिल से गिड़गिड़ाते हुए आपसे माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी बगावत खड़ी करने की कोशिश नहीं करूँगा। तहकमाना से अंदाज में तुर्निताई ने शरफुद्दीन को खड़ा होने के लिए कहा, जिस पर शरफुद्दीन फौरन उठा और सीधा खड़ा हो गया। उसके बाद फौरन तुर्निताई ने गुस्सेली आवाज में कहा, सुन शरफुद्दीन, मैं तुझे माफ करने का मजाज नहीं हूँ। मैं अपने सुल्तान सैफुद्दीन के हर हुक्म का पाबंद हूँ। तेरे लिए सुल्तान ने मुझे यह हुक्म दिया था कि तुझे जंजीरों में जकड़ कर काहिरा रवाना कर दिया जाए, लिहाजा तेरी किस्मत का फैसला काहिरा में खुद सुल्तान सैफुद्दीन करेगा। मैं आज ही तुझे काहिरा रवाना कर दूंगा। इसके साथ ही तुर्निताई ने शरफुद्दीन संजर को बीड़िया पहनाने का हुक्म दिया और एक मुहाफिज दस्ते के साथ उसे काहिरा रवाना कर दिया। इसके बाद तुर्निताई और हुसामुद्दीन अपने लश्कर के साथ हरकत में आए और दमिश्क शहर में वो दाखिल हुए और शहर में क़याम कर लिया। और दूसरी जानिब शरफुद्दीन संजर जब काहिरा पहुंचा तो सुल्तान सैफुद्दीन ने बगावत के जुर्म में उसे कत्ल तो नहीं किया, लेकिन उसे जंदान में डाल दिया था। मंगोलों के मरकजी शहर मुरागा में मंगोलों का हुक्मरान और हिलाको खान का बेटा अबका खान अपने तख्त पर बैठा हुआ था। उसके दाएं जानिब उसकी हसीन और जमील नसरानी बीवी जो कुस्तुनतुनिया के शहंशाह की बेटी थी, और उसकी बाएं जानिब और सामने दो रवैया अंदाज में उसके मशीर और सुलहकार बैठे हुए थे। ऐसे में केसर के अंदर दो पादरियों को पेश किया गया। अबका खान के सामने आने के बाद उन दोनों पादरियों ने अपने सर को जमीन की तरफ खूब झुकाते हुए अबका खान को ताज़ीम दी। फिर उन दोनों पादरियों में से कोई गुफ्तगू का आगाज करना ही चाहता था कि अबका खान पहले ही बोल पड़ा। मेरे चौबदार ने मुझे बताया कि तुम दोनों तराबलस की तरफ से आए हो और मेरे लिए कोई इंतहाई अहम पैगाम रखते हो। इस पर उन दो पादरियों में से एक बोल पड़ा, अजीम खान, आपके चौबदार ने आपको दुरुस्त ही बताया है। आपके पास आने से पहले उसने हमसे सारी मालूमात हासिल की थी। देख खाकान, नसरानियों ने इस वक्त अपनी सारी कुव्वत को तराबलस में जमा करना शुरू कर दिया है और कमक के तौर पर अपने कुछ लश्करियों को एक और किले में भी मुंतकिल करना शुरू कर दिया है, ताकि मुसलमान अगर तराबलस पर हमलावर हो तो उस किले से बरवक्त रसद, कमक और दिगर इमदादी सूरत में हर चीज़ मुहैया और मुयसर आ सके। तराबलस के सरगर्दा नसरानियों की तरफ से खाकान, हम तुम्हारे पास आए हैं और तुमसे ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों का अजीम सुल्तान रुकनुद्दीन फौत हो चुका है। शायद अबका खान को इल्म होगा कि मुसलमानों का सुल्तान रुकनुद्दीन एक अजीब और गरीब इंसान था। उसने गुलाम से लेकर शहंशाह तक जिंदगी के सारे हई मराहिल से आशनाई हासिल की थी और वो जंगजू और फन सिपाहगिरी में भी बेपनाह फन जानता था। अपना कोई जवाब नहीं रखता था। इसी बिना पर नसरानी और मंगोलों में से जो कुव्वत भी उसके साथ टकराई पाश पाश होकर ख़त्म हो गई। इसके सामने नसरानी ही नहीं, मंगोल और बातिनी ने भी जिल्लत आमेज शिकस्तें उठाई। अबका खान, तराबलस के नसरानियों का ख्याल है कि इन इलाकों में आपकी कुव्वत सबसे बड़ी कुव्वत है। अब अगर आप चाहें तो मिस्र की हुकूमत को जेर और मगलूब करके अपनी माजी की सारी शिकस्तों के दाग धो सकते हैं। इस वक्त मुसलमानों का सुल्तान सैफुद्दीन है, वो भी एक गुलाम से सुल्तान बना है, लेकिन कहने वालों का कहना है कि वो ना ही रुकनुद्दीन जैसा जंगी तजुर्बा, ना ही जुर्रत और हिम्मत उस जैसा दम रखता है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि अगर आप सैफुद्दीन से टकराने की कोशिश करें तो शिकस्त को सैफुद्दीन का मुकद्दर बना सकते हैं। अजीम खाकान, तराबलस के नसरानी को इस वक्त मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर जमा करने के लिए अमल से गुजर रहे हैं और वो जंग की तैयारियों में पूरी तरह मसरूफ़ है और वो फिलफौर जंग करने की हालत में नहीं है। लेकिन अगर आप मुसलमानों के खिलाफ जंग की इब्तिदा करें तो इस जंग में वो आपकी मदद करने पर ज़रूर कादिर होंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर दोनों कुव्वतें मिलकर मुसलमानों के नए सुल्तान सैफुद्दीन से टकराए तो सैफुद्दीन को पाश पाश करके रख सकती है। अजीम खाकान, तराबलस से हम दोनों पादरी यही पैगाम आपके पास लेकर आए हैं कि मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए इससे बेहतर और कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने इस मौके को ज़ाय कर दिया तो फिर सारी उम्र हमारे पास पछताने के अलावा कुछ ना रहे और फिर आइंदा कभी भी हम मुसलमानों से अपनी शिकस्तों, हज़ीमतों और नाकामियों का इंतकाम ना ले सकेंगे। मंगोलों के अजीम खाकान, ऐसा वक्त फिर कभी नहीं आएगा और हम यही पैगाम लेकर आए हैं कि आप वक्त ज़ाय के बगैर मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े हो, इसलिए कि आपके पास पहले ही से एक अजीम और जर्रार लश्कर मौजूद है। यहाँ तक कहने के बाद वो पादरी जब खामोश हुआ तो अबका खान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो कहने लगा, बुजुर्ग पादरियों, मैं तुम्हारे और तुम्हें भेजने वाले तराबलस के मोअज़्ज़ज़ नसरानियों का शुक्रगुजार हूँ
کہ تم ہمارے ساتھ تعاون اور اتحاد کی پیشکش کر رہے ہو، پر میں تم پر انکشاف کروں کہ اگر یہ مشورہ لے کر نہ بھی آتے تب بھی میں مسلمانوں سے ٹکرانے اور ان پر حملہ ور ہونے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ سنو دونوں پادریوں، میں نے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا رکھا ہے اور عنقریب تم سنو گے کہ میں خود اپنے لشکر کے ساتھ مسلمان علاقوں کی طرف پیش قدمی کروں گا اور مسلمان حکمرانوں اور سلطنتوں کی حالت وہی کروں گا جو اس سے پہلے میرا باپ ہلاکو خان اور میرا باپ دادا جنگیز خان کر چکا ہے۔ اب تم جاؤ اور ہمارے شاہی مہمان خانے میں جا کر قیام کرو، جب تم چاہو طرابلس کی طرف رخصت ہو سکتے ہو۔ عنقریب تم سنو گے کہ میں نے مسلمان علاقوں کے اندر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ اور دونوں پادریوں ابقا خان کے جواب سے مطمئن ہو گئے تھے اور وہ بڑے پرسکون اور مسکراتے ہوئے انداز میں قیصر کے اس کمرے سے نکل گئے تھے۔